Hello students, today we are going to do a new lesson, conditional sentences. Now through the word only conditional you can come to know that means if clause is being used. Now look over here students, if plus main clause. If clause condition is given, so the result is main clause. Like the other way, if the main clause is given, the result, the condition will be with if. Now, see the sentence example. If I see her, I will tell her. That is what? कि देखूं मिलूंगा देखूंगा तो बोल दूंगा. So if is used over here. Now, there are several structures in English that we call conditionals or if conditionals. We call them as conditionals or if conditional. जिसमें इफ लगता है, अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये बन जाता, अगर मैं मेहनत करता तो मैं सक्सीड करता, लाइक दैट. सो इफ इज यूज्ड. नाउ द वर्ड कंडीशन मीन्स सिचुएशन और सर्कमस्टांस. कोई सिचुएशन होती है या एक सर्कमस्टांस होता है जिससे हम उस कंडीशन को ट्रू करते हैं. कोई कंडीशंस ट्रू भी होती हैं और कुछ श्योर नहीं होती. दैट इज श्योर एंड अनश्योर. नाउ देर आर 3 बेसिक इंग्लिश कंडीशनल्स प्लस द जीरो कॉल्ड कंडीशनल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनल टाइप, दैट इज पॉसिबल कंडीशन प्लस प्रोबेबल रिजल्ट. कि कंडीशन उसमें रिमेंबर हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज होता है. विल प्लस हैव. दैट इज अ पॉसिबल कंडीशन जो ट्रू होगी, जो हमें पता है कि ये ऐसे होनी है. एक होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन प्लस पॉसिबल रिजल्ट, वेयर यू फील दैट कि तुम इमेजिन करते हो एंड यू फील दैट और वो रिजल्ट निकलता है. लाइक इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लाइड. तो वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है. सो व्हाट इज दैट? उसमें पास्ट सिंपल यूज होता है एंड वुड. इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव गॉट द रिजल्ट, दैट. देन कम्स expired past condition plus past possible past result. अगर मैंने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता. दैट इज विच हैज़ बीन फिनिश. कि कोई चीज़ हो चुकी है एंड उसके बाद तुम सोचते यार ऐसे होता, ऐसे करता तो शायद ठीक हो जाता, लाइक दैट. सो दैट इज पास्ट परफेक्ट. वुड एंड हैव इज यूज्ड ओवर देयर. एंड द लास्ट वन इज द रियल कंडीशन plus inevitable result. That is also present simple and the result is also in present simple only. That is when we will go further with the conditions we will come to know. That is first condition, that is the real possibility. If I win the lottery, I will buy a car. Now this is what we are talking about the future. We are thinking about a particular condition or a situation in the future और उसका रिजल्ट भी एक कंडीशन में होगा कि लॉटरी लगेगी तो कार खरीदूंगा. सो देर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट दिस कंडीशन विल हैपन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज मॉर्निंग, यू आर एट होम, यू प्लान टू प्ले टेनिस दिस आफ्टरनून, but there are some clouds in the sky. So imagine that it rains, what will you do? So तुमने ये डिसाइड किया है कि मॉर्निंग है, घर पे हूँ, आज टेनिस प्ले करूँगा, बट देन क्लाउड्स देखते हो तो तुम इमेजिन करो what you will say, what you will do, what will you say. So that is if कंडीशन लगती है, उसका रिजल्ट भी विल में होगा. प्रेजेंट, इफ it rains, I will stay home. This is the way it will be used. Ki if it rains, I will stay home. If it rains, I will not play tennis. So that is the if condition. तो
इफ कंडीशन के साथ तुम रिजल्ट भी बताते हो कि ऐसा हुआ तो ऐसे होगा. देन कम्स योर second condition, that is unreal possibility, where you are not sure about it. If I won the lottery, I would buy a car. Now the second condition is like the first conditional. We are still thinking about the future. हम future के बारे में सोच रहे हैं. We are thinking about a particular condition in the future. Future की condition को सोच के कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी एक कंडीशन में होता है, बट रियल पॉसिबिलिटी नहीं है उस कंडीशन की. यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो सेकेंड कंडीशनल होती है अनरियल पॉसिबिलिटी. दैट इज इफ आई ग्रो टॉल आई वुड बी अ पुलिसमैन. If I had wings, I would fly very high. So this is your second conditional where you are imagining. तुम imagine करते हो. So इसमें if condition का result क्या होता है? Would. I won the lottery, I would buy a car. So would लगेगा. Then comes your third conditional with no possibility. If I had won the lottery, I would have bought a car. I would have कि अगर जीतता तो लेता, तो उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल हमको फ्यूचर के बारे में बता रही थी, बट द थर्ड कंडीशन जो है वो हमको पास्ट, इट्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट एंड डिड नॉट हैपन. इफ आई हैड वन द लॉटरी, जीता तो था, सो पास्ट कंडीशन है, सो उसका रिजल्ट भी पास्ट में होगा. लास्ट वीक यू बॉट अ लॉटरी टिकट बट यू डिड नॉट विन, सो वुड लगेगा. आई हैड वन द लॉटरी, आई वुड हैव बॉट अ कार. सो स्टूडेंट्स, go through the video thoroughly and we will do the exercise tomorrow in the Zoom class. Thank you.